Hello everyone. In previous lecture, I discussed about the fluctuation of energy in engine, what is the maximum fluctuation of energy and how we find the coefficient of fluctuation of energy. In today's lecture, we will actually discuss about the flywheel, what is flywheel and how it's useful to control the fluctuation of energy. So let us start. First, what is flywheel and why it is used? A flywheel used in machine serves as a reservoir. Like a water reservoir, it is used to store water. Same way, the flywheel is used to serve as a reservoir which stores the energy during the period when the supply of energy is more than the requirement and releases it during the period when requirement of energy is more than the supply. In previous lecture, we have seen that in engine the power requirement varies with the various crank angle. There was a diagram for steam engine that here it is the turning moment and here it is the crank angle. So there was a variation in power requirement of engine like this, and the mean torque requirement was this. So what was happening over there? In initial there is a lower requirement, means lower power available from engine, so the requirement was this, so that extra amount of energy was taken from flywheel. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन में दिखाया गया है कि फ्लाईव्हील क्या करता है, वो एक रिजर्वर है विच स्टोर्स द एनर्जी ड्यूरिंग पीरियड व्हेन सप्लाई ऑफ एनर्जी इज़ मोर देन द रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड रिलीज इट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज़ मोर. जब यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वो उसको रिलीज़ करेगा. इन केस ऑफ स्टीम इंजन, internal combustion engines, reciprocating compressors and pumps, the energy is developed during one stroke and the engine is to run for the whole cycle on the energy produced during this one stroke. As we have seen that for IC engine, what happens, there were various strokes and we have seen that there is, suppose this is the suction stroke and then there was compression stroke. So the diagram was something like this. There is the compression stroke and then there is power stroke and there is exhaust stroke. So these are the four strokes in IC engine. So what happens, the power we generated by the engine is only in the one portion. So the whole cycle has to run from this power. That's why the flywheel is required. For example, in IC engine, energy is developed only during expansion or power stroke, which is much more than the engine load, and no energy is being developed during the suction, compression and exhaust stroke. In case of 4-stroke engines and during compression in case of 2-stroke engines. जो 4-स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर 3 ऐसे स्ट्रोक है जिसके अंदर कोई भी पावर डेवलपमेंट नहीं होगा, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट स्ट्रोक. जबकि 2-स्ट्रोक इंजन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रोक में वहाँ पे पावर जनरेशन नहीं होगा, एक्सपांशन में होगा. तो उसी के ऊपर पूरी की पूरी साइकिल हमको चलानी है, सिर्फ वही 1 स्ट्रोक के ऊपर. तो उसके लिए फ्लाईव्हील चाहिए होगा. द एक्सेस एनर्जी डेवलप्ड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक is absorbed by the flywheel and releases it when the crankshaft during other stroke in which no energy is developed, thus rotating the crankshaft at uniform speed. That's why हम क्या करते हैं, फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं. जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप हुई है पावर स्ट्रोक के थ्रू उसको वो एब्जॉर्व करेगा और उसको रिलीज़ करेगा टू रोटेट द क्रैंकशाफ्ट फॉर द अदर स्ट्रोक्स,
where there is no release of energy or there is no energy developed, thus rotating the crankshaft at uniform speed, और उसकी क्रैंकशाफ्ट की स्पीड को मेंटेन करेगा। अभी फ्लाईव्हील का मास ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम होगा, और जो मोमेंटम पावर स्ट्रोक में डेवलप होगा उसकी वजह से जो स्पीड है वो फ्लाईव्हील की इंक्रीज़ होगी, और उसी मोमेंटम और स्पीड की वजह से वो क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता रहेगा इन दी अदर स्ट्रोक्स। और वो हमने देखा था कि जो पावर स्ट्रोक के एंड में जो फ्लाईव्हील की स्पीड थी वो मैक्सिमम थी। A little consideration will show that when the flywheel absorbs energy, its speed increases, and when it releases energy, its speed decreases. This is very simple fundamental. अब पावर सप्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्लाईव्हील की स्पीड इंक्रीज होगी, और जब वो रिलीज़ करेगा, मतलब जो क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने की कोशिश करेगा फ्लाईव्हील, तो उसका कुछ मोमेंटम कम होगा, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड कम होगी। दिस इज़ बट ऑब्वियस। Hence, a flywheel does not maintain a constant speed, it simply reduces the fluctuation of speed. अभी उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लाईव्हील की स्पीड के अंदर भी वेरिएशन तो आएगा ही। जब पावर स्ट्रोक के एंड में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और जब वो एंड स्ट्रोक होगा, जब कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म होगा, तो उसकी स्पीड सबसे कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लाईव्हील है वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, जैसे कि वन स्ट्रोक के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सडन स्पाइक ऑफ एनर्जी था, उसको वो कम करेगा और यो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा ओवर द साइकिल। इन अदर वर्ड्स, फ्लाईव्हील controls the speed variations caused by fluctuation of engine turning moment during each cycle of operation. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्लाईव्हील क्या करता है, स्पीड वेरिएशन को कंट्रोल करता है। ये स्पीड वेरिएशन किसकी वजह से कॉज किए गए हैं, कॉज्ड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन टर्निंग मोमेंट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। जो इंजन का टर्निंग मोमेंट का जो फ्लक्चुएशन है, उसका जो स्पीड वेरिएशन, उसकी वजह से स्पीड वेरिएशन होगा, उसको ये कंट्रोल करेगा। ठीक है। इन मशीन वेयर ऑपरेशन इज इंटरमिटेंट लाइक पंचिंग मशीन, shearing machine, riveting machine, crushers, the flywheel stores energy from the power source during greater portion of an operating cycle and gives it up during smaller period of cycle. जैसे कि कोई मशीन है, उसके अंदर इंटरमिटेंट पावर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पंचिंग में है तो सिर्फ और सिर्फ जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा उसके अंदर उसको पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होगी, जैसे कि शीयरिंग मशीन है, रिवेटिंग मशीन है। एट द एंड ऑफ साइकिल उसको पावर ज़्यादा चाहिए होगी, या फिर क्रशर है। तो ऐसे टाइप के ऑपरेशंस के लिए हम फ्लाईव्हील यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लाईव्हील उसमें क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा फ्रॉम द पावर सोर्स ड्यूरिंग द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द ऑपरेशन एंड गिव्स इट अप ड्यूरिंग द स्मॉलर पीरियड ऑफ साइकिल। जो हमारा स्मॉल पीरियड ऑफ साइकिल है, जैसे कि जिसमें पंचिंग ऑपरेशन, शीयरिंग ऑपरेशन या रिवर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके लिए जो पावर रिक्वायरमेंट होगी वो फ्लाईव्हील वहाँ पे फुलफिल करेगा। Thus, energy from the power source to machines is supplied practically at constant rate throughout the operation. So, हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि जो भी एनर्जी सप्लाई है पावर सोर्स के थ्रू, वो कांस्टेंट रेट में ऑपरेट हो रही है। यहाँ पे एक नोट दी हुई है कि जो फंक्शन ऑफ अ गवर्नर इन इंजन इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फ्लाईव्हील। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फ्लाईव्हील और गवर्नर में डिफरेंस क्या है। गवर्नर भी स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ होता है और यहाँ पे भी कुछ स्पीड कंट्रोल के लिए दिखाया गया था, लेकिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जो फ्लाईव्हील है वो इंजन के थ्रू जो टर्निंग मोमेंट में जो वेरिएशन होता है उसको कंट्रोल करता है, उसकी वजह से जो स्पीड में वेरिएशन होता है उसको एक यूनिफॉर्म वे में, जबकि गवर्नर हम चाहते हैं कि इंजन की स्पीड में जो वेरिएशन है वो हो और हमारी डिज़ायर्ड वे में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
इट रेगुलेट्स द मीन स्पीड ऑफ, जो गवर्नर है वो क्या करेगा, इट रेगुलेट्स द मीन स्पीड ऑफ एन engine where there are variation in load. When the load on engine increases, it becomes necessary to supply of वर्किंग फ्लूइड. जैसे कि आपकी कोई व्हीकल है वो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो उसके लिए जो लोड रिक्वायरमेंट है वो लोड रिक्वायरमेंट क्या होगा, लोड विल बी लेस. ठीक है, सो हम उस टाइम पे जो मीन स्पीड है, जो सपोज वो ये v वेलोसिटी से व्हीकल जा रही है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन करनी है, जैसे कि 30 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हमको मेंटेन करनी है. अब सडनली यहाँ पे एक स्लोप आता है, और जो स्लोप है वहाँ पे जाके जो लोड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड से कम होके सपोज़ यहाँ पे 20 हो गई. तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोड इंक्रीज़ हुआ. तो उस लोड को कंपेंसेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, मतलब थ्रोटल जब दबाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ होगी. तो गवर्नर यही करता है कि जो हमारी मीन स्पीड है उसको हमको अगर मेंटेन करना है, तो वहाँ पे जब लोड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तब वो ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करेगा, और जब लोड रिक्वायरमेंट कम होगी तो वो फ्यूल सप्लाई कम कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारी स्पीड हमको चाहिए वो हमको मिलेगी. दैट्स वाई जो गवर्नर क्या करता है, इट रेगुलेट्स द मीन स्पीड ऑफ engine. While on the other hand, flywheel, the fluctuation produced by the engine torque, जो engine के थ्रू जो पावर स्ट्रोक जहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा उसको वो रेगुलेट करेगा. On the other hand, when the load decreases, less fluid is required. That in the governor. The governor automatically controls the supply of working fluid to engine with varying load condition and keeps the mean speed of engine within certain limits. जो हमारी कार है उसके अंदर तो हम जो थ्रोटल के थ्रू फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई जो है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो ट्रक्स है उसके अंदर एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए उसमें स्पीड कंट्रोल गवर्नर्स लगाए हुए होते हैं, जो ऑटोमेटिकली उस स्पीड को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे. ठीक है, बाय कंट्रोलिंग द वर्किंग फ्लूइड सप्लाई. As discussed above, flywheel does not maintain constant speed. It simply reduces the fluctuation of speed, and it does not control the speed variation caused by the varying load. Because यहाँ पे जो varying load होगा उससे उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है कि बाहर कितना varying load है. जो फ्लाईव्हील है वो इंटरनल जो है हमारा इंजन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका फ्लक्चुएशन ये कंट्रोल करेगा. एक्सटर्नल लोड कितना है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड during a cycle is called as maximum fluctuation of speed. जो भी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है उन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. और इसका रेशियो लेंगे विद द मीन स्पीड, जो एवरेज स्पीड है, यानी कि मैक्सिमम और मीन का सम करके डिवाइड बाय 2, दैट इज़ मीन स्पीड, तो उसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. यहाँ पे अज्यूम किया है कि सपोज n1 एंड n2 इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड इन rpm ड्यूरिंग अ साइकिल. सो मीन स्पीड होगी वो उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 होगा. और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड it is equal to the difference between maximum and minimum speed divided by mean speed. So यहाँ पे जो coefficient of fluctuation of speed कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे n1 minus n2 divided by n, that is mean speed. और जो mean speed का equation क्या है, ये n1 plus n2 divided by 2, जो coefficient of fluctuation of speed है इसका ये equation हमको मिलेगा.
और उसको अनदर वे में अगर लिखना है एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, तो हम इसी फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं। जो ओमेगा यहाँ पे है दैट इज द मीन एंगुलर स्पीड, ठीक है, और ये मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड। सो इसको हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड भी लिख सकते हैं। और अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखना हो तो सेम वे v1 माइनस v2 अपॉन v, वेयर v1 इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड v2 इज द मिनिमम वेलोसिटी, वाइल v इज द मीन वेलोसिटी, यानी कि दोनों का एवरेज। सेम वे इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड और वेलोसिटी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज द लिमिटिंग फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है इन द डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सर्विस टू विच द फ्लाईव्हील इज एम्प्लॉयड। ये वेरी होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सर्विस, उसकी जो नेचर क्या है सर्विस की, टू विच द फ्लाईव्हील इज एम्प्लॉयड। जो फ्लाईव्हील है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जो रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। यहाँ पे फ्लक्चुएशन है तो वो उसका रिवर्सल रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, स्टेडीनेस मिलेगा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय m एंड द इक्वेशन इज द 1/cs। जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसका इन्वर्स क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस, और इसका जो इक्वेशन है उसका उल्टा हमको स्टेडीनेस का इक्वेशन मिलेगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। अभी फ्लाईव्हील के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एक फ्लाईव्हील दिखाया हुआ है, फ्लाईव्हील के अंदर ये सारे उसके पार्ट है। जो आउटर पोर्शन है, जो हैवीएस्ट पोर्शन होता है वो दैट इज़ अवर रिम, इनसाइड दैट इज़ हब, जिसके ऊपर ये माउंट किया जाता है और यहाँ पे आर्म प्रोवाइड की गई होती है। फ्लाईव्हील वी हैव discussed that the flywheel absorbs energy and its speed increases when it gives up energy, its speed decreases. That is simple. जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ेगी और जब रिलीज करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। सपोज m is the mass of flywheel in kg, k is the radius of gyration of flywheel in meters, I is the mass moment of inertia of flywheel about its axis of rotation in kg into meter square, that is equal to I is equal to mass moment of inertia, that is given by mk square. And n1 and n2 are the maximum and minimum speed of engine during the cycle. Omega 1 and omega 2, that is the maximum and minimum angular speed during the cycle in radian per second. So here the mean speed during the cycle is given by the n1 plus n2 divided by 2, and the mean angular speed is given by omega 1 plus omega 2 divided by 2, while the coefficient of fluctuation of speed it is given by this equation, n1 minus n2 divided by n, or omega 1 minus omega 2 divided by omega. We know that the mean kinetic energy of flywheel is given by E is equal to I omega square. This is the equation of the kinetic energy, but mean kinetic energy, that's why we are taking here the omega, not omega 1 or omega 2. It is the mean kinetic energy of flywheel, that is given by E is equal to 1/2 I omega square. जैसे कि m k square या फिर m v square है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है E is equal to 1/2 एम वी स्क्वायर, बट यहाँ पे एंगुलर के फॉर्म में हम देखेंगे तो m की जगह पे आएगा I और v की जगह पे आएगा ओमेगा एंगुलर स्पीड। सो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा, एम के स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे एम के स्क्वायर लिखा है और इसका जो यूनिट होगा एनर्जी का यूनिट मालूम है, न्यूटन इंटू मीटर और जूल। As the speed of flywheel changes from omega 1 to omega 2, the maximum fluctuation of
energy is given by delta E is equal to maximum kinetic energy minus minimum kinetic energy. जो स्पीड फ्लाईव्हील की चेंज होगी फ्रॉम ओमेगा 1 to ओमेगा 2, that will be the maximum fluctuation of energy delta E, that is equal to maximum kinetic energy minus minimum kinetic energy, and that is given by these two equation, ओमेगा 1 स्क्वायर एंड ओमेगा 2 स्क्वायर. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आई होगा वो यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा. आगे हमने देखा था वो मीन काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे ये मैक्सिमम के लिए ओमेगा 1 आएगा एंगुलर स्पीड, यहाँ पे ओमेगा 2 आएगा, यहाँ पे आई कॉमन निकल गया. उसके बाद जो है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. फर्दर वी सिंप्लीफाई, हमको मालूम है कि जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू आवर मीन एंगुलर स्पीड. सो यहाँ पे आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. अभी इसको ये हमारा पहला इक्वेशन मिला, इसको हमको मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू दिस इक्वेशन. आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करें, सपोज हम मल्टीप्लाई करें बाय ओमेगा और डिवाइड करें बाय ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू द coefficient of fluctuation, that is given by CS, coefficient of fluctuation of speed, CS, जिसका इक्वेशन हमने आगे डिराइव किया था. तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, और इसको आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखेंगे तो वो वहाँ पे मिल जाएगा. और जो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे होगा दैट विल बी इक्वल टू द 2E सी एस, क्योंकि यहाँ पे जो E है उसका इक्वेशन हमने आगे यहाँ पे डिराइव किया था, दैट इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू, हमको जो आगे इक्वेशन मिला था दैट इज E इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे I इज इक्वल टू था एम के स्क्वायर. पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे I है, ओमेगा स्क्वायर है, पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स E आएगा, तो यहाँ पे 2ECS, इसके फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं डेल्टा E का इक्वेशन, क्योंकि E इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. द रेडियस ऑफ गायरेशन K may be taken equal to the mean radius of rim because the thickness of rim is very small as compared to diameter of rim. जो K है उसको हम इक्वल टू मीन रेडियस कैपिटल R ले सकते हैं, जब यहाँ पे थिकनेस जो है रीम की वो स्मॉल है कंपेयर टू द डायमीटर बहुत ज़्यादा है, और जो थिकनेस है रीम की वो कम है, यानी कि K इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन 2 में R पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा mr² ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस. और फर्दर फॉर्म में हमको मालूम है कि V इज इक्वल टू R ओमेगा, दिस इज द इक्वेशन. सो यहाँ पे डेल्टा E इज इक्वल टू हमको मिलेगा mv² cs, where V is the mean linear velocity at mean radius in meter per second, which is equal to omega into R. Further, there are some notes that since the 2 pi n upon 60 omega is equal to, sorry, यहाँ पे ओमेगा प्रिंट होना रह गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, वी में राइट हियर इट इज ओमेगा, we may write omega in this equation. If we put, that was the equation, delta E is equal to I omega 1 minus omega 2. If we put the value in this, we will get delta E, and by simplifying we will get the delta in the form of speed. And further we simplify, we put I is equal to mk square, we will get in form of that
and here similarly we multiply and divide by n से मल्टीप्लाई करेंगे मीन स्पीड से और मीन स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो जो n अब यहाँ पे n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्पीड, that is the coefficient of steadiness, coefficient of fluctuation of speed. And further, if the above expression only mass moment of inertia of flywheel rim is considered and the mass moment of inertia of the hub and arm is neglected, जो hub and arm का mass moment of inertia अगर हम neglect करेंगे और only mass moment of inertia of flywheel rim is considered, यहाँ पे ये फैक्ट किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू द मेजर पोर्शन ऑफ द मास ऑफ फ्लाईव्हील इज इन रिम. जो हमने फ्लाईव्हील का कंस्ट्रक्शन देखा था उसके अंदर जो मेजर मास है वो उसकी रिम के अंदर था, एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ मास वॉज देयर इन द हब एंड आर्म्स. ऑल्सो द हब एंड आर्म्स आर नियरर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड देयरफॉर द मास मोमेंट ऑफ inertia of the hub and arm are small. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.